أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وجماله ونوره وكماله. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Pep Talk Pakistani show. Ladies and gentlemen, by the grace of Allah Almighty, I'm getting a very good feedback of my show Pep Talk Pakistan. The main objective of my show is to show the positive image of Pakistan to the world. I am conducting interviews of different professionals as they are sharing their success stories and struggles with my followers. You know, people are following me on LinkedIn, YouTube, and Facebook. And I know these kind of sessions are the great source of motivation for everyone. This session would be in two medium. One is English and second is Urdu, so the maximum people can reach to us. Ladies and gentlemen, today again I am super excited. You know why? Because the guest that we're gonna have today, he is expert in his area, and you know he's well known in tech sector. He is having more than 15 years working experience in the field of human resource management, and he is known as the best technical recruiter in tech sector. Joining us today, a superstar of tech sector and an amazing visionary. You know, when I say amazing, I mean it. You know what's special about him? He is a best technical recruiter, as I already mentioned that, in the tech sector. Today he will be sharing his views on how technical recruiter can help you to get hired. I'm talking about today's guest, and his name is Shiraz Chaudhary. He is currently working with Texel in the capacity of HR head. Let's welcome Shiraz Chaudhary. Shiraz, it's good to have you here. Thank you so much for joining us. Pep Talk. Thank you, Hassan. Thank you very much, and it's really exciting to be the part of this session. Thank you very much for inviting me. I'm very much excited to share my experience and some stories with all of the viewers. Great, wonderful. अच्छा Shiraz, सबसे पहले तो I would like to thanks to you because I know you have having a very busy schedule, or you're working in tech sector and I'm also working in tech sector, so it's a bit difficult for us. So I can understand exactly कि time निकालना आसान नहीं होता. So I do appreciate कि आपने मेरे show Pep Talk पाकिस्तान के लिए जो है वो टाइम निकाला, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट सेशन विद यू. बिकॉज़ हम टॉपिक पे तो जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मेरे शो का एक फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट ये है कि हम जो भी गेस्ट आते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी स्ट्रगल जो है वो जरूर सुनते हैं. सो द पीपल दैट हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, और जो हमें बाद में भी देखेंगे, तो वो डेफिनेटली उनके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी. तो वो जानना चाहेंगे, वो सुनना चाहेंगे कि आपने जब अपने करियर का स्टार्ट किया तो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दैट यू हैव फेस्ड. See, Hassan, thank you very much again, and it's pleasure to be the part of this session. अगर आप बात करें ना, what is the struggle period जहाँ पर आपके करियर में एक टर्न आता है that actually help you to grow. So normally वो point होता है जहाँ पर आप barriers को break करते हैं. When I graduated, I did my bachelor's and master's in finance. And I came into the market to see the job there, finance में क्या job. But practically, why I came into the market, I'll see like people who has done, specialized studies in ACCA or CA in the accounts, they are more into the market. And only there's a banking sector that where an MBA can get the job. But I was not interested due to some, my personal values. So when I came into the market, I was like struggling, looking for what kind of career I can start with. I start working on the odd jobs, working the call center, in some night jobs, and some small marketing companies to get the idea what is my potential. Now, after working like 1.5 or 2 years, I came to know I'm the person who is a people-oriented guy.
So talking to the people, engaging the people, being socialized is one of my instinct that actually, by nature is given by the call. So this took actually 2 years to make me understand, because the studies I have done, जो studies पढ़ ली थी, मैथ्स में भी अच्छे नंबर आते थे, हमने कहा चलो यार फाइनेंस में कर लेते हैं, BBA भी और MBA भी. But practically the personality I do have and the studies I have that's very different. So ultimately, I got a chance with a company to work in HR department and realized this is the right career. And from that point of time, from last 12 or 13 years, I am working in the HR. So that was the first turning point or struggling phase of 2 years where I actually tried to explore myself, what kind of career I should adopt according to my personality. Then I worked 5 years with the corporate sector. Worked with few manufacturing companies, worked service industry. Then I moved to the IT. So that was another turnaround for me, because IT is altogether separated, different from other industry as well. So the recruitment, the people orientation, the people making people socialize, that's a very different sector compared to the other sector. So that was another challenge for me. I'll just share my story with the Texel as well. I joined Texel as senior HR executive with very less or zero experience in the tech sector, because mostly I worked before Texel in the corporate sector. So I joined this organization like 5 years back as senior HR executive. Company supported me, like by chance. It was my good luck. That was my prayer of my parents. I got a good company. So company supported me. With the passage of time, I learned from my colleagues, from my other people in the HR, tech HR. They helped me to actually learn about the technical recruitment and tech sector HR. So from HR executive, I've been promoted to assistant manager, then become manager, and now I'm heading the HR department at Texel. So that 5 years, it's all struggling. But that struggling is always been exciting for me, because I always learn something new. And when you learn new, so definitely that's actually make you motivated, and that actually make you focus on something that excites you. So that's how I actually my career gone through. Specifically, when I joined this company, we were 2 people in the department, but with the passage of time, we have grown, and now we have 8 people team. So that's we go. So with the individual person, now I become a manager, heading a team, and supporting an organization in my better way. Yeah. वंडरफुल, ग्रेट. अच्छा शराज, हम अक्सर ये सुनते हैं कि जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो हसन भाई या शराज भाई मुझे इसलिए कॉल नहीं आए क्योंकि मेरे पास रेफरेंस नहीं. तो जब आपने अपने करियर का स्टार्ट किया तो आप क्या समझते हैं कि वो रेफरेंस कोई आपके पीछे भी था जो आपको यहाँ तक लेकर आया, या जो लोग हमें देख रहे हैं आप उनको क्या एडवाइस करते हैं कि रेफरेंस किस लेवल तक अब आपको सपोर्ट करता है? अच्छा, जिस तरह भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना, इट टुक्स 2 years टू फाइंड आउट कि वेयर आई हैव एक्चुअली बीइंग फिट इन एज अ करियर. सो अगर मेरे पास कोई रेफरेंस होता तो ये 2 साल ना लगते. सो आई डोंट हैव एनी रेफरेंस बाय स्टार्टिंग द करियर. अच्छा, एक रेफरेंस एक डिफरेंट चीज़ होती है कि डायरेक्टली समवन प्लेस यू टू द जॉब, एंड सोशलाइजेशन और पीपल people gathering skill is some different. When you socialize, so people actually refer you to the opportunity, and that's the maximum reference you can get from the people if you are a struggling person. मैंने भी अपने करियर में I work with lot of people and good people that actually work with me. They refer to me a good job in 1 or 2 in my career, and I got that opportunity by giving the reference. But reference सिर्फ यहीं तक होता है कि यार ये एक opportunity है, यहाँ पे apply करो, and if you get selected, you will get that better opportunity. इसके अलावा never go for any reference. और मेरा ख्याल है, and I would suggest that कि यार reference के पीछे कभी ना जाए.
बिकॉज व्हेन यू गो फॉर द रेफरेंस तो फिर आप सिर्फ उतना ही लिमिटेड ग्रो करेंगे जिस रेफरेंस के थ्रू आप एंटर होंगे. बट वंस यू नो योर पोटेंशियल, तो यार आपका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, सो यू इजी टू गेट टू ग्रो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. जहां आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, आप लिमिटेड नहीं हो जाते. Agreed. Wonderful, wonderful. अच्छा शिराज, जैसे वी आर इन टेक सेक्टर, तो हमारे लिए तो टाइम को मैनेज करना होता है. पर्टिकुलरली अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें, इस क्वेश्चन के बाद हम इसकी तरफ जाएंगे जो हमारा आज का टॉपिक है. तो जो टेक्निकल रिक्रूटर हैं या टेक सेक्टर में जो लोग हैं वो भी हमें देख रहे हैं, और बाद में भी यूट्यूब में और लिंक्डइन पे भी जब हम डालेंगे तब देखेंगे. तो दे जस्ट वांट टू नो दैट कि आप अपने टाइम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं. क्योंकि हम अभी जब मॉक सेशन में हमें डिस्कशन कर रहे थे तो यू वर जस्ट शेयरिंग विद मी के लिए हसन भाई मल्टीपल पोजीशंस चल रही हैं और 3 महीने के अंदर हमने इतनी पोजीशंस जो वो फिल भी की, और यू वर्किंग 24/7. क्योंकि अमेरिका में इंटरनेशनल लेवल पे आपके क्लाइंट्स हैं तो डेफिनेटली वो भी अप्रोच करते होंगे दिन को भी रात को भी. तो हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम? Specifically, the biggest challenge that anyone, either it's a recruiter or it's a developer or anyone who is working in the tech sector, the challenge that is faced is there is no time constraint. You have to work, you have to be available 24/7 because you need to work in the first shift, but the client to whom you are serving, they are working in the other shift. So there is a total time differences. So 24/7 is your availability. How I manage the things specifically, because I have to give my time to the family and I have my social circle as well. So I prioritize the things. And second, I do the commitments and I fulfill the commitment. If you do any commitment and fulfill that particular commitment, तो उसके लिए फिर आपको prioritization और struggle करनी पड़ती है. So once you fulfill your commitment, automatically आपकी prioritization भी हो जाती है and you are able to give your time to the family and to your friends as well. वंडरफुल, ग्रेट. मैं ये समझता हूँ कि डायलेमा ये है कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारे एंड पे कि जो हम बात करते हैं उसको हम ज़रूर पूरा करें. जब हम कोई कहते हैं कि यार ये हमने इस टाइम पे काम करना है लेकिन समहाउ वो लेट हो जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं, हम वी टेक ऑलवेज ईजी कि ठीक है यार कर लेंगे, हो जाएगा. यस, रीड दैट द कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा शिराज, लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक. उस पर भी हम बात करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा होगा वो ये होगा, द कोविड सिचुएशन, मैं कहता हूँ तबाही बर्बादी सब कुछ फेर के रख दिया कोविड ने. नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे हिला के रख दिया सबको. तो जब हम बात करते हैं लोगों की नौकरियों की, बहुत सारे लोग जो है फोर्स रेजिग्नेशन हुए, बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को अनपेड लीव पे भेज दिया गया. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे सिनेरियो में कि बीइंग टेक्निकल रिक्रूटर, बीइंग रिक्रूटर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट दैट कि क्या जो कोविड था ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी टेक सेक्टर के लिए, या कि इसने भी उस तरह हमें हिट किया जिस तरह इसने डिफरेंट सेक्टर को हिट किया? अच्छा हसन भाई, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. लाइक particularly if you are working in tech, तो उसमें भी industry to industry vary करता है. For example, if you are serving to the hoteling industry or hospitality industry or the airline industry, so definitely these companies are being hit. But if you are serving to e-commerce or actually the healthcare, so you will actually got a boom. So in my experience, COVID become an opportunity for us, specifically for me and my organization, if I talk about. Where people were, as you said, people were saying thank you very much to their employees, the companies, and then they are actually cutting off the salaries, cutting off the benefits as well. So we get the opportunity to hire more people. In the 3 months time period, we successfully hire around 45 people. So like that's on average 15 people per month that we successfully take on board. और फिर इसके लिए जो एफर्ट पुट करनी पड़ी, इफ आई हैव चेक द लॉग ऑफ माय टीम, टाइम लॉग, सो वी पुट लाइक 14 hours per day for that particular thing, because you actually try to reach the people, conducting interviews. आप ये कहने के यार 20 में से एक बंदा जो अच्छा निकलता है, that is being fulfilling the client's requirement. So this COVID is actually being डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री के साथ आप कनेक्टेड हैं एज ए टेक सेक्टर. आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बेनिफिट भी हो सकता है, और हो सकता है यू आर लूजिंग दी business as well. So that's how we got. I'll share a case study with you. While working in the for the recruitment in COVID,
इट वॉज वेरी चैलेंजिंग इन अ वे कि कुछ चीज़ें तो प्लस थी और कुछ नेगेटिव थे, प्रोज एंड कॉन्स थे। प्रोज ये थे कि वी गेट द टाइम कि कैंडिडेट को ट्रैवल नहीं करना पड़ा टू द ऑफिस। जस्ट नॉर्मली जूम पर आप इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं, जूम मीटिंग कोई मोबाइल से भी ले सकता है, आप लैपटॉप से भी ले सकते हैं, किसी भी डिवाइस से उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो टाइम है, टाइम कंस्ट्रेंट्स कम हो गई, वी आर एबल टू स्केड्यूल मोर इंटरव्यूज, वी आर एबल टू रीच मोर पीपल एज एन रिक्रूटर। ऑन द अदर हैंड जो ब्रांडिंग वाला फैक्टर है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। जब एक बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है ना, और उसके साथ किस तरह उसको वेलकम किया जाता है, this is the point where the candidate actually decide कि either I have to join this company or not। 70% जेन वो वहीं पे बना लेता है। फिर बाकी सैलरी, बेनिफिट्स और बाकी चीज़ें, या किस तरह की जॉब है और क्या उसमें टू डूज हैं, वो बाद में मिलते हैं, क्योंकि कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये वाला फैक्टर जो है काफ़ी मिसिंग रहा, बिकॉज फिजिकली देर इज नो कल्चर, फिजिकली देर इज नथिंग प्रेजेंट टू प्रेजेंट टू द कैंडिडेट। तो सिंपली आप जूम पर हैं और आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे साथ बड़ा एक केस स्टडी हुआ। आप कहते हैं जी टेक सेक्टर में एक अलमिया है, एक क्लाइंट को अगर एक बंदा पसंद आ जाए तो फिर वो बंदा ही वही देना, ठीक है, उसको फिर कोई और पसंद आता नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करें, सो देयर वाज क्लाइंट आई वाज वर्किंग विद, और उनके लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे। देयर वर फ्यू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ ऑलरेडी एंगेज थे। उन्होंने इंटरव्यू दिया, कुछ हम लोगों ने बाहर से इंटरव्यूज करवाए, तो 2-3 लोग अंदर से सेलेक्ट हो गए। एक बंदी क्लाइंट को बाहर से पसंद आई, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं थी, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे। व्हाट हैपन इज कि जब मैंने उसका फर्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल करवाया अपने टेक्निकल मैनेजर के साथ, तो ओवर द जूम, तो उसके इंटरनेट में थोड़ा सा इशू, बट उसकी प्रोफाइल कम्युनिकेशन, वंडरफुल कम्युनिकेशन। तो बट हम लोगों ने कहा नहीं यार, इसको छोड़ना नहीं है। बट वी डू इसके, हमने मोबाइल से उसको कॉल की और स्पीकर पे आधे घंटे का इंटरव्यू किया, एंड आधे पौने घंटे का इंटरव्यू इसके साथ कंडक्ट किया, एंड सक्सेसफुली वी एबल टू उसका जो भी क्राइटेरिया था अकॉर्डिंग टू दी जॉब डिस्क्रिप्शन, हमने उसको एवेल्युएट किया एंड वी शॉर्ट लिस्टेड। देन द नेक्स्ट स्टेप वाज कि वी नीड टू प्रेजेंट हर टू दी कैंडिडेट, क्लाइंट, और देन आई कॉल हर और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि जी आप आपका क्लाइंट का इंटरव्यू है। द क्वेश्चन मार्क वाज कि यार अच्छा आपका इंटरनेट अब ठीक नहीं चल रहा था जब व्हेन यू वर गिविंग द इंटरव्यू, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप ऑफिस विजिट कर लें ताकि इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेक श्योर कि क्लाइंट के ऊपर इंप्रेशन जो है वो थोड़ा सा बुरा ना जाए रिगार्डिंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी। शी सेड कि जी कोविड में तो मैं बाहर नहीं आ सकती, अगर आपने मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू स्केड्यूल करना तो कर लें। ठीक है जी, कैंडिडेट इज कैंडिडेट, अब पसंद आ गया हमें, तो हमने कहा ओके जी चलें आप लेट्स स्केड्यूल योर इंटरव्यू। बट इंटरनेट के लिए व्हाट विल डू इज कि आई सेंड वन ऑफ माई नेटवर्क पीपल टू योर होम विद द इंटरनेट, पर वो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी देता है। आई सेंड वन ऑफ माई नेटवर्क पीपल टू हर होम, यार आप बैठें और आप मतलब उसको ये फैसिलिटी इंटरनेट की प्रोवाइड करें, मेक श्योर कि इंटरव्यू कंडक्ट हो गया। अल्टीमेटली क्लाइंट सेलेक्ट दैट पर्सन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू ऑफर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट कि आप आएँ और आपको हम ऑफर करते हैं। आई कॉल हर, आई कॉन्ग्रेचुलेट हर कि जी आप सेलेक्टेड हो गई एंड वी एक्चुअली वांट यू टू बी द पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। Can you come please office so that we can actually give you the job offer, discuss the remuneration package and your role. So she said कि नहीं जी this is COVID so I cannot come, and I will say कि now how we proceed that. She said कि जी आप online discuss कर लें. I had 1.5 hour meeting with her online और I discuss all the job opportunities, जो भी job description के हवाले से उनका role है, आपके जो benefits हैं, वो सारी चीजें I actually discuss with her. And she asked me for as a regular procedure कि यार मुझे 1 या 2 दिन का टाइम दें और उस 1-2 दिन में मैं फिर आपको डिसाइड करता हूँ. Ultimately she accepted the offer. So on the next step, what I do is कि okay, I ask her कि please visit to the office to sign the offer letter. She said no, I'm not coming to the office because of the COVID. Now what to do? I go no problem. I actually sent one of my employee to her office or to her home to actually sign the offer letter, and then she successfully accepted the offer and we closed the position. So this is the challenge, unforeseen challenges. People were afraid of this pandemic. But as a recruiter, we have to perform out of the way to fulfill the position. So that's how we do that, and successfully, mashallah, that candidate joined us to the organization, and we are working with this. Yeah. आई थिंक इट्स वंडरफुल न्यूज कि ज्वाइन कर लिया. कई दफा तो ये होता है कि सारा प्रोसीजर करवा के भी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं. अच्छा शिराज, लेट्स डिस्कस द टुडे टॉपिक. और हमारा टॉपिक यूनिक और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बहुत सारे टेक्निकल रिक्रूटर भी ये सेशन देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जो जॉब्स करना चाहते हैं टेक सेक्टर में,
उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा ये सेशन। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहेंगे, माशाल्लाह यू हैविंग एक्सपर्टीज इन टेक्निकल रिक्रूटमेंट, काफ़ी सालों से आप कर रहे हैं, और मैं तो खैर आपको तब से जानता हूँ 2007-8 से, जब वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ HR executive for one company. So I think that mashallah the way that you are growing and you have grown, it's remarkable, और बेस्ट विशेस आपके साथ है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके साथ लोग हो और वो इतना ग्रो कर रहे हो, और वंडरफुल। सो शिराज, टेक्निकल रिक्रूटमेंट बात करते हैं हम, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि व्हाट इज टेक्निकल रिक्रूटमेंट? अच्छा, अगर आप बाय डेफिनेशन टेक्निकल रिक्रूटमेंट की बात करें ना, सो देयर इज़ वेरी लेस टेक्निकल रिक्रूटर इन पाकिस्तान। अगर आप यूएस की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, सो वहाँ पर टेक्निकल रिक्रूटर उसको कंसिडर किया जाता है जिसका बैकग्राउंड टेक्निकल है। इफ समवन वांट्स टू हायर अ डेवलपर, सो उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना वो टेक्निकल है। एंड पाकिस्तान में यू कैन एक्चुअली काउंट ऑन फिंगर कि बहुत लिमिटेड टेक्निकल रिक्रूटर, बट बिकॉज यहाँ पर इस तरह का अलमिया नहीं है कि टेक्निकल लोग रिक्रूटमेंट साइड पर आएँ, सो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी ये होती है कि यू कैन लर्न ऑन द जॉब, यू कैन लर्न ऑनलाइन थ्रू सम कोर्सेज। डेव स्किल इज प्लेटफॉर्म जहाँ सर आप एक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, दे गिव यू अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन बैच इफ यू क्लियर दैट सर्टिफिकेशन, एंड देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इन पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स को लर्न कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसमें गूगल, फेसबुक या लिंक्डइन है, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकली टेक्निकल रिक्रूटर हैं, दे हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड एज ऑलरेडी सेड। अब अगर इस तरह नहीं है, तो एटलीस्ट जो आपकी बेसिक स्किल्स है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, यू शुड हैव अ गुड ग्रिप, और यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट कि यार डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, बेसिक प्रोग्रामिंग को किस तरह देखा जाता है, लॉजिक किस तरह है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह जज की जा सकती है। तो इफ यू आर सक्सेसफुली एबल टू लर्न दिस थिंग, यू विल बिकम अ गुड टेक्निकल रिक्रूटर इन आईटी इंडस्ट्री। फिर सेकंड चीज, आप थोड़ा सा जो एज ए टेक्निकल रिक्रूटर आपको फोकस करना पड़ता है वो मार्केट ट्रेंड्स पर है कि यार टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज होती है। सो इफ यू आर वर्किंग इन वन टेक्नोलॉजी, या आप एक टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और आपको उसका नॉलेज है, सो यू एक्चुअली बीइंग हैव टू अपडेट योरसेल्फ कि यार अच्छा अभी पहले PHP थी, .NET थी, तो अब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग क्या है, वो कैसे काम करती है, उसके क्या ट्रेंड्स हैं, फ्रेमवर्क्स क्या है, उसमें लिंगो क्या बोली जाती है, और किन किन कंपनीज में काम होता है, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि यार किस तरह का बंदा फिट रहता है इस जॉब के लिए, और किस कंपनी से यू कैन एक्चुअली बी एक्वायर्ड फॉर एज अ रिक्रूटर फॉर योर कंपनी। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें दैट मस्ट बी लुक इनटू व्हाइल वर्किंग एज अ टेक्निकल रिक्रूटर। Great, wonderful. Acha, Shiraz, second question is that regarding this topic is that what is the main difference between recruitment or technical recruitment? जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया हसन के टेक्निकल रिक्रूटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना अबाउट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या पर्टिकुलर डोमेन, वो बहुत जरूरी होती है। जो नॉर्मली रिक्रूटर है उसको आप कोऑर्डिनेशन का रोल भी कह सकते हैं कि समवन एक्चुअली बीइंग कोऑर्डिनेटिंग, वो दे आर मेकिंग कॉल्स एंड दे आर scheduling the interview. But in technical recruitment, technical recruiter is able to judge a candidate on basic level before sending to the interviewer. So that's the technical recruiter. While the recruiter is someone who actually being scheduled and managing the and coordinating the interview. So this is the main difference. So you need to have a technical knowledge. Great, wonderful, wonderful. अच्छा, खैर जैसे कि लोग हमें देख रहे हैं और डिफरेंट कमेंट्स और क्वेश्चंस भी जो आ रहे हैं, सो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं टेक्निकल रिक्रूटर बनना चाहूँ, अगर मैं बनना चाहता हूँ, हाउ कैन आई बिकम द टेक्निकल रिक्रूटर? सही, पाकिस्तान में एज सच इस तरह अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है कोई एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये कि देयर आर प्लेटफॉर्म्स, वन ऑफ आई वुड लाइक टू टॉक हियर, HR Knowledge Cafe. This is actually a forum where 200 plus technical recruiters from big and medium sized software houses are being gathered. You can become the part of this. ये फॉरम कुछ सेशंस भी करता है, दैट्स अ फ्री सेशंस जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू लर्न अबाउट दी टेक्निकल रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे कुछ मेंटर्स भी हैं जिनसे आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट कि टेक्निकल रिक्रूटमेंट में हाउ यू कैन स्टार्ट विद इट। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, जो एक जनरल फिनोमिना है, आप ये देखें कि जिस फील्ड में अगर आप टेक्निकल रिक्रूटमेंट में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड में कौन कौन से लोग इस वक्त टॉप पर बैठे हैं, फिर उनकी आप जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसको देखिए कि हाउ एक्चुअली दे रीच देयर, हाउ दे लर्न दीज थिंग्स, और फिर उनसे आप सीखें कि यार अच्छा दिस इज द पाथ विच आई कैन अडॉप्ट
और उसके अकॉर्डिंगली आई कैन लर्न दैट पर्टिकुलर टेक्निकल इक्विपमेंट। थर्ड ये है कि ऑन द जॉब जो आपकी लर्निंग है ना, उससे बेहतर लर्निंग कोई भी नहीं है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्टिंग कोऑर्डिनेटिंग विद द टेक्निकल पीपल, दे हेल्प यू टू लर्न कि यार टेक्निकल चीज़ें क्या है। फोर्थ ये कि आपका जो कुछ नैनो कोर्सेज हैं जो कि यूडेस्टी, डेमी या प्लूरल साइट पर कुछ अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने डेव स्किल की बात की, इट्स वन ऑफ द गुड कोर्स जो बेसिक लेवल पे अगर आप कर लें तो वो आपको काफ़ी टेक्निकल नॉलेज के बारे में बता देता है इफ़ यू आर इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन द टेक्निकल रिक्रूटमेंट। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इफ़ यू फोकस ऑन दैट तो यू डेफिनेटली कैन गेट द राइट करियर इन द टेक्निकल रिक्रूटमेंट। वंडरफुल, ग्रेट। अच्छा शिराज, हम दो पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, एक तो टेक्निकल रिक्रूटर बनना कैसे है जो आपसे ये सेशन का फॉर्मेट डिस्कस हुआ था, और दूसरा टेक्निकल रिक्रूटर क्या देखता है कैंडिडेट में कि क्या है। अच्छा, द थर्ड क्वेश्चन दैट आई वुड आस्क टू यू कि आप ये बताइए कि बीइंग टेक्निकल रिक्रूटर आप क्या कॉम्पिटेंसीज, क्या बिहेवियर और क्या जो इंटरव्यू में जो चीज़ें हैं वो आप असेस करते हैं जब कैंडिडेट को आप हायर करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ओपन सेशन रखना चाहूँगा सजेशन के हवाले से कि व्हेन यू वांट टू परस्यू योर करियर इन द इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका ख्याल रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस जो अच्छी मिड साइज या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आईटी की, वो इन्हीं फैक्टर पे लोगों को एवेलुएट करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार जो भी ज़्यादातर लोग जो हमारे साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और अभी भी ये अलमी है, लोग कहते हैं कि यार अच्छा मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और आई वांट टू बिकम दी कि मैं .NET डेवलपर बनना चाहता हूँ, PHP डेवलपर बनना चाहता हूँ या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम करना। दिस इज़ गुड, बट द फर्स्ट स्टेप दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट बी गुड एज एन इंजीनियर। ऑर्गेनाइजेशन, when good organization go do their technical interview, तो अगर वो 2 घंटे का इंटरव्यू है ना, तो उसमें से 1 घंटा वो बेसिक इंजीनियरिंग पे लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिक्स पे स्किल्स पे लगाते हैं टू जज दैट, एंड देन वी गो फॉर द प्रोग्रामिंग। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आप .NET का माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहाँ पर आप एज एन कैंडिडेट अपीयर होते हैं, तो दे विल नेवर आस्क यू फॉर द .NET, क्योंकि .NET तो उन्होंने बना ली है। दे विल आस्क के आप .NET से आगे क्या कर सकते हैं, तो दे विल नॉट फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी, they will focus on problem solving, analytical skill, your communication, your teamwork, your ability to resolve the issues. So these are the basic skills that need to be done. So आप सबसे important चीज़, आपके जो basic engineering skills हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपनी base को सबसे पहले as a candidate जो फ्रेश लोग हैं उसको अच्छा करें। उसके बाद फिर अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है ना, तो उसके बाद आप फिर किसी भी टेक्नोलॉजी से यू कैन बिल्ड एनी बिल्ड। आप एक टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं, 2 में करना चाहते हैं, बेसिक्स अगर आपकी गुड है, यू कैन स्विच फ्रॉम वन टेक्नोलॉजी टू अदर विद द पैसेज ऑफ टाइम और जैसे डिफरेंट चीज होता है। बट अगर आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी लर्न करेंगे तो माइट बी यू बी लिमिटेड टू दी few particular opportunities. So आपके लिए opportunities भी काम होती है। So basic engineering skills must be good rather than becoming a programmer or a developer, become an engineer. So this is one important thing. Second important thing जो मैं already पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपकी soft side है ना, which is very important. क्योंकि जब आपने एज ए टीम काम कर रहे हैं तो एज ए टीम प्लेयर विच यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए टीम प्लेयर। सेकंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। काम तो कर सकते हैं और टेक्निकली दे आर पीपल जो कि आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट तो फिर वो आपके काम का उतना बेनिफिट नहीं है। वो कहते हैं कि यार कोई भी जब आप डील करने जाते हैं ना तो उसमें 80% कम्युनिकेशन होती है और 20% फाइनेंशियल फैक्टर होता है कि आप उस आइडिया को कम्युनिकेट कैसे करते हैं। So communication skill, written and verbal, both are very important for the people. और आपको पता है कि हमारा क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में US, UK, यूरोपियन क्लाइंट से है और वहाँ पे कम्युनिकेशन भी उनके साथ है, तो वो that's a plus point if someone is good in technical as well as in communication skills. Great. Third, I would like to mention कि जो fresh graduates हैं उनको जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है ना वो लाजमी हासिल करना चाहिए। और इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन सम पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और आपका 2-3 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको अदर टेक्नोलॉजीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस किस तरह ले सकते हैं? यू कैन एक्चुअली बी पार्टिसिपेट इन ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जो आपका अपना गिटहब पे प्रोफाइल होना चाहिए, आपका स्टैक ओवरफ्लो पे जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसका रिप्लाई करें। उससे आइडिया हो जाता है कि यार हाउ एक्चुअली व्हाट इज योर कैपेबिलिटी। प्लस ये कि हम जैसे रिक्रूटर भी वहाँ पर जाते हैं कि यार अच्छा किस बंदे ने पर्टिकुलरली क्या रिप्लाई किया और उसके अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू जज कि अच्छा यार दिस इज द स्मार्टेस्ट पर्सन विच वी कैन गेट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन एज पर। तो इस तरह के जो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर नैनो कोर्सेज की तरफ काफ़ी फोकस करें
कि जो डेस्टी है, यूडेमी है, प्लूरलसाइट है, वहाँ से जो कोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से या बेसिक इंजीनियरिंग के हवाले से, वो डेफिनेटली उनको परस्यू करना चाहिए। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली पर्टिकुलरली आई वुड रिकमेंड कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जरूर हासिल करना चाहिए, स्पेशली फ्रेशर। एग्रीड। अच्छा, थर्ड थिंग जो कि मैंने अभी तक देखी है, तो सोशलाइजेशन स्किल जो है ना, वो थोड़ा सा उसमें लोग लैक करते हैं। सोशलाइजेशन करें, जो आपके ऑनलाइन इवेंट्स हैं, ऑफलाइन इवेंट्स हैं, उसमें करें। जो आपकी टेक टॉक्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, उसको अटेंड करें और वहाँ पर जाके लोगों से सोशलाइज करने की कोशिश करें। उससे आपको मार्केट ट्रेंड का आइडिया होता है कि यार वेयर एक्चुअली मार्केट इज गोइंग ऑन। नॉर्मली आप फ्रेश ग्रेजुएट निकलते हैं और निकलते यार मार्केट में बहुत टर्म है कि जी मैंने डेटा साइंस में काम करना है। पीपल डोंट नो बट डेटा साइंस, बट दे वांट टू वर्क। बट एक्चुअल मार्केट में क्या हो रहा है कि यार डेटा साइंस इंडिपेंडेंटली तो शायद उतना काम ना करे जितना बेनिफिट वो किसी एक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर आपको सपोर्ट करे। बट क्योंकि सुन लिया है कि यार डेटा साइंस में काम करना है, तो पर्टिकुलरली लोग डेटा साइंस की तरफ जाना, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जाने की शौक रखते हैं या उनका एक इरादा होता है। So just go attend the event, जो आपके सीनियर्स हैं, एलुमनाइज हैं, उनके साथ कनेक्शन रखें, अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल है उसको एक्टिव रखें। तो ये सारी अगर पॉइंट्स अपने आप को सोशलाइज रखते हैं, तो बीइंग सोशल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेसिक्स आपकी जो हैं एज एन इंजीनियर दे मस्ट बी गुड। मेन फोकस आपकी बेसिक इंजीनियरिंग स्किल्स पे होना चाहिए। योर कम्युनिकेशन स्किल, ये सॉफ्ट साइड है, उस पर भी आपने फोकस करना है। देन जो नैनो कोर्सेज हैं जो कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, वी नीड टू गेट दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पॉइंट बस ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हवाले से। व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर फर्स्ट जॉब, so डोंट गो फॉर द मनी एंड इवन डोंट गो कि यार मैंने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ही काम करना है। आपका माइंड ब्लॉक वहाँ पे नहीं होना चाहिए। The most important thing is who is going to be your boss and what is the culture of that company you are going to work. First 3 to 5 years जिस तरह की कंपनी के साथ आपने काम किया, आपका थ्रू आउट करियर वही बनेगा। So it's better to work with a better company who value skills, कि जहाँ पर स्किल सेट्स को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, जहाँ पर एम्प्लॉई डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप उसके कल्चर को लाजमी देखें और आपका जो बॉस है या जिसके साथ आपने काम करना है उस पर फोकस करें कि यार व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके लिंक्डइन प्रोफाइल लाजमी देखें कि यार अच्छा कहाँ उसने काम किया है, किस टेक्नोलॉजी में क्या एक्सपर्टीज है। तो ये कोशिश करें। व्हेन यू गेट द जॉब इट्स ओपन, यू कैन आस्क एचआर कि यार मेरा बॉस कौन है, मैंने किसको रिपोर्ट करना है, एचआर हैप्पी टू टेल यू। So do that. So this is one important thing when you go for the job. So these are my some suggestions with my experience कि यार ये चीजें हैं जिस पे एक फ्रेश ग्रेजुएट को या इवन जो बिगनर करियर्स के बिगनर लेवल पर होते हैं उनको फोकस करना चाहिए। वंडरफुल वैल्यूएबल इनपुट शिराज। आई थिंक दैट कि बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अच्छा शिराज, मैं अमूमन वैसे जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं लेता, हम लोग ने पहले एक फॉर्मेट जो है वो डिसाइड किया होता है। तो अभी एक क्वेश्चन जो है वो बार बार मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपसे पूछूं, तो आई वुड आस्क यू। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी आप ये पूछें शिराज से कि जो टेक्निकल रिक्रूटर है, अगर मैं टेक्निकल रिक्रूटर बन जाऊं तो क्या मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ? हमने ये सुना है कि टेक्निकल रिक्रूटर जो है वो बहुत पैसा कमाते हैं। सही। अच्छा, इसका जवाब मैं ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको इस तरह दूंगा कि अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल में जाते हैं ना, तो फार्मास्यूटिकल में उनका जो बैकबोन है ना वो प्रोडक्शन है, जो कि वो मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट मेडिसिन इज बीइंग सेल इनटू द मार्केट। जब आईटी में आप क्या सेल कर रहे हैं, पीपल एंड देयर स्किल, तो एचआर इज एक्चुअली द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सो योर वैल्यू इज फार डिफरेंट एज compared to the other sector, to be very honest, right? Yes, in other sector you can earn and you can grow very much, but in IT you are the production department, you are the backbone। कि जो एसेट मार्केट में सेल होना है ना वो आपने प्रोड्यूस करके देना। नाउ द सिनेरियो इज स्पेसिफिकली वेयर देयर इज अ कंपटीशन, जहाँ पर इस वक्त आईटी सेक्टर में बहुत कंपटीशन है टू गेट द राइट रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो रिक्रूटमेंट इज नॉट लाइक अ कोऑर्डिनेशन रोल, इट्स मोर ऑफ अ सेलिंग रोल, like it's a two-way sales. For example, I have to sell my organization to candidate and I have to sell that candidate to the organization. तो जब आप सेलिंग के रोल में जाते हैं ना, तो आपकी जो इनकम है, जो आपका रेवेन्यू है, जो आप जनरेट कर सकते हैं वो ज़्यादा होता है, बिकॉज आपने एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर दिया कि यार दिस इज द राइट कैंडिडेट, इसको रख लें और ये आपके क्लाइंट को सर्व करेगा। नाउ दिस पर्सन इज डायरेक्टली गोइंग टू द क्लाइंट एंड स्टार्ट बिलेबल, so you are generating direct cash for the company. When you are generating direct cash for the company is ready to pay you any amount you want.
So yes, you can earn a lot of money from the technical recruitment. वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, एक टेक्निकल रिक्रूटर हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि शिराज से ये क्वेश्चन है वो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें। उनका पर्सपेक्टिव ये था कि जी कि ये क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो ज़रा मुझे सपोर्ट और हेल्प मिल जाएगी। वो कहते हैं कि बीइंग टेक्निकल रिक्रूटर मेरे लिए हमेशा ये डिफ़िकल्टी रहती है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के। तो जब हम इंटरव्यू करवाते हैं यूएस में किसी से या यूके में किसी से, तो हमारे पास हम फॉर एग्जांपल वो कैंडिडेट क्या करता है, वो यहाँ से ऑफर लेता है और दूसरे जहाँ पर काम कर रहा होता है करंट एम्प्लॉयर से वो वहां से निगोशिएट कर देता है। आप ऐसी टेक्नोलॉजी के लोग जो हैं वो हैं ही वैसे कम, पूरी दुनिया में कम है, पाकिस्तान में भी कम होंगे। तो हाउ यू हैव टू कन्विंस योर टॉप लेवल मैनेजमेंट? तो वो तो आपको पता है ये आ रहा होता है शोर ऊपर से कि जी की पोजीशन फिल नहीं हुई, पोजीशन फिल नहीं हुई, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। तो हाउ वी हैव टू कन्विंस द टॉप लेवल मैनेजमेंट दैट कि जी देखिए जी टेक्नोलॉजी में बंदे वैसे ही कम हैं और द मेन कंसर्न इज दैट कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा कर रहा है तो वी कांट चेंज द माइंडसेट ऑफ द कैंडिडेट बिकॉज वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो उसको बेहतर लगता है वो करे। तो क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये है कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप कवर करना चाहें तो क्या कैंडिडेट को ऐसा करना चाहिए? दूसरा, बीइंग टेक्निकल रिक्रूटर टॉप लेवल मैनेजमेंट को किस तरह कन्विंस किया जाए इस सिचुएशन में? अच्छा, नॉर्मली बिफोर कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये नॉर्मली बिट अनएथिकल, बट बिकॉज यू नो व्हेन यू आर अटैच्ड टू एन ऑर्गेनाइजेशन और व्हेन यू मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी और वो आप आइदर यू गो फॉर मनी और आप लर्निंग के लिए जाते हैं, बट इफ योर करंट ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग यू द सेम थिंग सो फिर आपको फिर मूव करने की जरूरत नहीं होती। So in some perspective, yes, this once you do the commitment, तो उसके बाद थोड़ा सा ये unethical है अपने commitment से अगर आप इसको fulfill नहीं करते। अच्छा, before going to the management, recruiter को अपने end पे भी थोड़ी सी ना working strong करनी चाहिए। हम normally क्या करते हैं, मैंने जो भी scenario देखा है लोगों के साथ, कि they actually call the candidate, they go for the interview और वो उसको interview करवा के and then they put in front of the client place। और वो फिर क्लाइंट से क्लियर होता है और फिर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है, दैट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ द कंपनी। आप इसको थोड़ा सा प्री चेक कर लें कि यार अपने कैंडिडेट से पहले ही निगोशिएट कर लें कि यार अच्छा व्हाट काइंड ऑफ ऑफर चाहिए, ओके दिस इज द ऑफर, अगर आपको ये इतने पैसे चाहिए, ये बेनिफिट चाहिए, ये रोल चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, ये डेजिग्नेशन चाहिए, वी आर गिविंग यू। बट आपने हमें एक कमिटमेंट देनी है कि वंस इफ यू आर सिलेक्टेड सो यू कैन नॉट गो बैक। सो आप उससे वो रिटर्न में कमिटमेंट ले लें, कंडीशनल करके या उससे कमिटमेंट ले लें, आपको वहीं पता चल जाएगा यार कि वो बंदा सीरियस है कि नहीं है। जब आप उसमें नॉर्मली ये कर लेते हैं ना कि अच्छा थोड़ा सा रिस्क ये कि अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे सो जो कंपनी को लॉस होगा उसमें फिर आपको भी बियर करना पड़ेगा लॉस, बिकॉज हम क्लाइंट लॉस करेंगे। और ये एक छोटी सी कंडीशन डाल के लोगों से कमिटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो आपको प्री फिल्टर ही हो जाएगा कि किसने ज्वाइन करना है किसने नहीं करना। सो बहुत सारा जो इस तरह का कैंडिडेट है वो पहले ही प्री फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी साइड पे ये है कि देयर इज लेस पीपल फॉर अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। सो नॉर्मली गुड ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को ये बात पता होती है कि यार कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पे लोग कम अवेलेबल हैं। सो उसमें मैनेजमेंट को कन्विंस आप इस तरह कर सकते हैं कि you can ask them you can clear the scenario कि यार this is the number of profiles I have in the market और इन्हीं लोगों को मैं reach out करूंगा, इनमें से if we get the successfully the candidate successfully, so this is what we have, otherwise what we can do is we can actually develop the candidate internally। तो आपने अपनी मैनेजमेंट को जो विजिबिलिटी है ना, एक्चुअल कहने का जो मकसद है विजिबिलिटी दिखानी है कि यार दिस इज द 10 कैंडिडेट्स दे कैन ज्वाइन, अदर देन 10वां के बाद 11वां कैंडिडेट मेरे पास मार्केट में नहीं है। So this is the visibility. So this is the effort I can put. इस effort के बाद I cannot do anything. और practically आप कुछ कर भी नहीं सकते ना. There is no scenario. So visibility जितनी साथ साथ दिखाते जाएंगे लोगों को, अपनी मैनेजमेंट को, they will be very much convinced on that. So अपनी साइड पे भी एज ए रिक्रूटर थोड़ा सा करें कि यार लोगों से कमिटमेंट लें जहां तक पॉसिबल है, और दूसरी साइड पे मैनेजमेंट को विजिबिलिटी साथ साथ दिखाते जाएं कि यार दीज आर द कैंडिडेट्स दैट आर अवेलेबल, और इसके अलावा नहीं अवेलेबल है, सो वी एक्चुअली नीड टू डेवलप पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। Wonderful, wonderful, great. So, I'd like to wrap up the session. Shiraz, thank you very much for giving your time, valuable input, support, and love. आप हमेशा ही जब भी आपको कहा है आपने हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा आपने टाइम दिया, and I do appreciate for that.
It's pleasure to be part of this forum. मुझे बड़ा अच्छा लगा है आपके साथ बात करके और it's a very good forum. और I really pray for you हसन कि जिस तरह आप सर्व कर रहे हैं, जिस तरह ये चैनल सर्व कर रहे हैं, so और मैंने आपके बहुत सारे सेशन देखे हैं with multiple senior people, so I really learn a lot. So I'm really loving this to be part of this session. Thank you very much. Okay, everyone, thank you again for watching my show Pep Talk Pakistan, and I'm very hopeful that के जो शिराज के साथ सेशन रहा ये बहुत अच्छा रहा. अक्सर मैं शिराज के बारे में कहता हूँ कि जब हम बात करते हैं क्रिकेट की तो हमारे जहन में इमरान खान का नाम आता है, और जब हम बात करते हैं टेनिस की तो हमारे जहन में रॉजर फीडर का नाम आता है, और जब हम बात करते हैं टेक रिक्रूटमेंट की पर्टिकुलरली पाकिस्तान में तो हमारे जहन में शिराज का नाम आता है. लिटरली आई नो हिम इन पर्सनल कैपेसिटी, और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है टेक सेक्टर में. बहुत डिफिकल्ट पोजीशन, क्रिटिकल पोजीशंस इन्होंने बहुत कम टाइम पे जो है ना वो फिल किए हैं. और मैं आई विटनेस हूँ, क्योंकि हम जो लाहौर नॉलेज कैफे का ये बता रहे हैं मैं और उसका पार्ट हूँ, और मुझे लिटरली आप यकीन माने पर्सनल कैपेसिटी में बता रहा हूँ, उस ग्रुप से मैंने भी बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वो मार्केट में फिल की हैं, और वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है. अगर आप पर्टिकुलरली टेक सेक्टर की बात करें तो क्रेडिट गोज टू यू शिराज, कीप अप द गुड वर्क. एंड आई नो दैट कि आप सोच रहे हैं कि उसको हम किस तरह और बेहतर करें, और आप कर भी रहे हैं. आपके मेरे ख्याल 2 साथी भी हैं उसमें, एक वकास है और दूसरे आई थिंक हारून. जी बिल्कुल, वकास और हारून हैं. वकास ईब्रिक्स के साथ हैं, हारून जेबर्स के साथ हैं ऑन मैनेजरियल कैपेसिटी इन एचआर. सो हम लोगों ने थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ. हम लोगों ने एज एन इंडिविजुअल हम तीनों ने स्टार्ट किया था, 3 लोग थे. सो वी स्टार्टिंग एडिंग, और फिर व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना, उस पर कोई 10, 12, 15 डिफरेंट कंपनीज के लोग ऐड हुए. वंस वी रीच द अमाउंट ऑफ अराउंड 30 और 35 इन व्हाट्सएप ग्रुप, सो हमने कहा यार चलो लेट्स डू अ गेटिंग. सो हम लोगों ने फिर अपना फर्स्ट मीटअप रखा 2 साल पहले. नाउ जो लास्ट हमारा मीटअप हुआ था और जो फर्स्ट मीटअप था उस वक्त 35 लोग थे हमारे साथ. जो लास्ट मीटअप हुआ है उस वक्त हमारे पास 207 लोग हैं फ्रॉम द टेक सेक्टर, स्पेसिफिकली इन एचआर. और वो एक प्रॉपर मीटअप था हसन, उसमें आप भी हमारे साथ इनवाइटेड थे. सो वहां पर हम लोगों ने फिर वो मीटअप अरेंज करवाया था. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर ग्रोइंग. हम फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट, ये दिस इज जस्ट वॉलंटियरली वर्क वी आर सर्विंग. और मेन पर्पस जो इस फोरम का और इस सोसाइटी का है वो यही है, नंबर 1 कि हम जो लोग टेक सेक्टर में एज एचआर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, वी आर हियर टू सपोर्ट देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सेकेंडली, इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया रिक्रूटमेंट में है कि राइट लोगों को ये नहीं पता, पीपल को, कि वेयर द राइट अपॉर्चुनिटीज, एंड राइट अपॉर्चुनिटीज डज नॉट नो वेयर द राइट पीपल. सो वी आर हियर एज ए वॉलंटियर to actually make a bridge between both of them. So this is the major purpose of this forum. Yes. वंडरफुल शिराज, वंडरफुल. अगेन शुक्रिया आपका बहुत कि आपने टाइम दिया, और माशाल्लाह हमारा जो सेशन था वो बहुत अच्छा रहा. I'm getting a good feedback. Inshallah I will upload that video YouTube as well. तो वहाँ से भी जो बाद में लोग हमें देखना चाहें वो वहाँ से देख सकते हैं. Again everyone, thank you watching my show Pep Talk Pakistan. बहुत अच्छा लगा. शिराज जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि सीजन एशिया प्रोफेशनल है, और टेक सेक्टर में इनकी बड़ी खिदमत है, और पाकिस्तान की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो लिटरली पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का. यही लोग हैं जो असल चेहरा है पाकिस्तान के, यही पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं. अगेन एवरीवन, थैंक यू. इंशाल्लाह ताला अनकरीब नए शो, नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा. दुआओं में याद रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. ठीक है.